Good morning, members. This is C. Abhishek S. Chauhan. Today we are going to start the IBC MCQs specifically for registered value examination conducted by IBBI or for insolvency professional examinations and any other exams in which IBC insolvency and bankruptcy code is required. And we are going to discuss the MCQs. Before going these MCQs or going through this video, the first and foremost step is at least go briefly through this particular act, then come to this video and you will be really benefited out of this for your exam purpose. So let's start without any delay. The first MCQ is, when did the insolvency and bankruptcy code 2016 receives the president's assent? Generally the dates are not asked, but if you have to remember, then 28th of May is the date 2016. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एप्लीकेबल ऑन, क्यों बनाया क्यों गया था वैसे ये कोड? दो चीजों के लिए, एक तो कंपनीज को रिवाइव करने के लिए, एक अगर लिक्विडेशन ही होनी है तो चलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, जब कंपनी जो फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी या फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही होती है ना. Insolvency and Bankruptcy Code 2016 applicable on companies incorporated under Companies Act or any other previous companies law 1956, that is LLPs and partnership firm and proprietorship, सबके ऊपर ये एक ही वन स्टॉप सॉल्यूशन है. प्रोविजन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 डू नॉट अप्लाई टू, किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर, जो स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स के अंडर जो है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स के अंडर रजिस्टर्ड है. बाकी इंडिविजुअल पार्टनरशिप प्रॉपर्टरशिप सबके ऊपर अप्लाई होता है. हाँ, इंडिविजुअल्स के लिए अभी के लिए वैसे एप्लीकेबल डेट नहीं आई है, बट एक्ट में प्रोविजन, एक्ट एज पर एक्ट इट इज एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल्स आल्सो. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, रीऑर्गेनाइजेशन and insolvency resolution for corporate persons, to promote entrepreneurship and to establish an insolvency and bankruptcy board of India, IBBI जिसको आप बोलते हो, all of the above, जो RBOs के एग्जाम भी कंडक्ट करता है. Who is the regulator under the insolvency and bankruptcy code 2016? रेगुलेटर कौन है इसका? IBBI. When the individual corporation or other organization cannot meet its financial obligation for paying debts due, it is, this is not debits, this is debts ड्यू, इट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी. जब कोई ड्यू डेट पर पे नहीं कर पाता उसको इंसॉल्वेंसी बोलते हो. उसी के रिगार्डिंग जो लीगल प्रोसेस उस इंसॉल्वेंसी को खत्म करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए शुरू कर जाते हैं, उसको बैंक्रप्सी बोला जाता है. और जब ये सॉल्व ना हो पाए फिर द थर्ड प्रोसेस इज लेफ्ट विद लिक्विडेशन, जो उनको पे ऑफ करने के लिए करी जाती है ना. When the court has determined insolvency and given legal order for it to be resolved, it is called bankruptcy. Just explained. Then dash describes a situation where dash is a legal scheme where an insolvency seeks relief from court. जब insolvency को court से relief चाहिए तो that position is called basically bankruptcy. And insolvency describes, first में आएगा insolvency describes a situation where bankruptcy is the legal scheme, जो उसके बाद legal scheme जो court से help मिलती है, that is called bankruptcy. Bylaws means the bylaws made by the insolvency professional agency under section 205 of the IBC must be remembered. This is a theoretical question, not financial regulator, IBBI, central government जो है bylaws नहीं, insolvency professional agencies जो है हमारी, चाहे वो ICAI की होगी, चाहे वो ICSI की होगी, चाहे वो ICMAI वालों की होगी, उनके द्वारा बनाए गए 205 के अंडर के बाईलॉज को हम लोग बाईलॉज बोलते हैं. A right to remedy for breach of contract under any law for the time being in force, if such breach gives rise to a right to payment, is called right to remedy. जो आप लोगों को क्रिएट होती है किसी भी लॉ के अंडर, जो पेमेंट नहीं करने के सिचुएशन में होती है, दैट इज कॉल्ड क्लेम. सर उसको डेट क्यों नहीं बोल सकते? डेट की जो डेफिनेशन है, इफ यू गो टू क्वेश्चन नंबर 13 before going to 11 and 12, just have a, we will discuss question number 13 and find out the difference between the two. A liability or obligation respect of a claim, एक claim create हो जाए उसके बाद जो right to recovery आती है, that is called a claim. ठीक है, जो claim create हो गया उसके बाद अगर आप उसकी पेमेंट नहीं करते, that becomes a debt. Liability or obligation respect of a claim which is due from any person is called debt. So 11, a right to payment which is not such right is reduced to judgment, secured or unsecured, is called claim. जो भी right to payment है that is claim. उसके बाद जो liability to pay उसके against, उस claim के against मेरे माइंड पर आ जाएगी, that is called debt.
Creditors means any person to whom a debt is owned and includes फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बोथ. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं जैसे बैंक्स हो गए जिनका ऑर्गेनाइजेशंस के बिजनेसेस में कोई लेना देना नहीं होता, पर एक होगी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, जैसे आप लोगों के पास कोई सप्लायर हो गया आपका जिसने आपको उधारी सामान दिया हुआ है, कोई सर्विस प्रोवाइडर हो गया जिसने आपको फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना. Then decree holder is also secured, unsecured is also creditors, and all are creditors. Financial information in relation to a person means, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इस लॉ के अंडर ऐसी इंफॉर्मेशंस जिनसे हम लोग उसके सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी का कुछ ना कुछ पता लगा सके. तो रिकॉर्ड्स ऑफ डेट ऑफ अ पर्सन इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. रिकॉर्ड्स ऑफ लाइबिलिटीज व्हेन पर्सन इज सॉल्वेंट, जब वो सॉल्वेंट है तब उसकी लाइबिलिटीज क्या है. रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स ऑफ पर्सन ओवर विच सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैज बीन क्रेडिटेड. सिक्योरिटी इंटरेस्ट शुड बी क्रिएटेड होना चाहिए, यहाँ पे वर्ड शुड बी क्रिएटेड. इंटरेस्ट हैज बीन क्रिएटेड, कि ऐसी कौन कौन सी एसेट्स हैं इसकी जिसके ऊपर इसने किसी ना किसी को लीन क्रिएट करा हुआ है, किसी ना किसी का कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है वो मॉर्गेज टाइप के दिए हुए हैं ना. तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन. Which of the following is not a financial information of a person? Records of instances of default is, मतलब आईबीसी के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें जिनका हमें रोल रहेगा उनको हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोल देते हैं ना. तो हमारे पास रिकॉर्ड जो है जो कि डिफॉल्ट उसने पहले क्या क्या किया, दैट इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. रिकॉर्ड्स ऑफ द बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ऑफ द पर्सन, किस तरीके से पेमेंट्स कर रहा है. रिकॉर्ड्स एंड एसेट्स ऑफ द पर्सन ओवर द सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैज बीन क्रेडिटेड या क्रिएटेड. रिकॉर्ड्स ऑफ द लेजर ऑफ द बैंक शोइंग लोन टू डेटर्स, अगर बैंक के थ्रू आपने लोन डेटर्स को दिए हुए हैं तो वो आईबीसी के लिए कोई ज्यादा रेलेवेंट फिगर जो है वो नहीं है ना. यहाँ पे क्रेडिटर्स की और लोन लिए हुए की इंफॉर्मेशन लेनी ज्यादा जरूरी होती है. एन अथॉरिटी और बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ नहीं होगा ये, अंडर एनी लॉ टू रेगुलेटेड सर्विस और ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इज कॉल्ड. एक बॉडी बनाई जाएगी जो फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल करेगी, जैसे आरबीआई है, ठीक है, सेबी है, क्या वो फाइनेंशियल सेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं? द आंसर इज यस. तो उनको बोलते क्या है हम लोग एक्चुअली में? फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर. फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर कौन कौन? आईबीबीआई इज अ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, सेबी इज अ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, आईआरडीए इज अ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, आरबीआई इज अ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर. Financial Service Sector Regulator as defined under IBC includes the Pension Fund Regulator Authority, say SEBI, IRDA, all of the above as I told you. जो भी फाइनेंशियल एंड पैसे वाले सेक्टर्स को जो है वो रेगुलेट करते हैं. फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर एज डिफाइंड इन आईबीसी डज नॉट इंक्लूड आरबीआई, बिल्कुल मैंने भी आपको बताया आता है, एससीबीआई, आईआरडीए, बट एनसीएलटी इज एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर दिस आईबीसी, जो केसेस को सुनेगी, वो कोई रेगुलेटर नहीं है. Which of the following is not an institution for resolution of an insolvency under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016? कौन सी इंस्टीट्यूशन नॉट एन इंस्टीट्यूशन, जो आईबीसी के अंडर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है? द आंसर इज आरबीआई. इंसॉल्वेंसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो कि डीआरटी या एनसीएलटी है आप लोगों का. उसके अलावा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो हो गए और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज जो होगी, आईसीआई एंड ऑल. देन लॉ गवर्निंग इंसॉल्वेंसी डज नॉट इंक्लूड, जो इंसॉल्वेंसी के अंडर लॉ में जो लॉज को कवर नहीं करते हैं ना. तो इसमें कौन कौन से नहीं है? सीधा सा आंसर है कॉन्ट्रैक्टेड. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड तो आता ही है. डेट टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 इज देयर, सरफेसी इज देयर. पर इनके रिगार्डिंग इसके अलावा जो इसमें बिल्कुल ही नहीं आता, जो इंसॉल्वेंसी है इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील ही नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 अमेंडेड द recovery of debt dues 1993, the securitization and surface basically, sick industrial company special provisions 2007 and all of these. इन सब को इसने अमेंड किया था. कितने एक्ट्स अमेंड हुए थे सर? 11. ठीक है, कितने एक्ट्स को रिपील करा गया था? द आंसर इज 2. उनमें से अभी वैसे एप्लीकेबिलिटी के बाद रिपील होने हैं, पर एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रिपील होने के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आपने याद रखना है कि 2 एक्ट रिपील हुए थे, 11 एक्ट अमेंड हुए थे इसकी वजह से. दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. Insolvency and Bankruptcy Code 2016 repealed, answer is 2 acts, and amended, answer is 11 acts. Which of the following acts has been repealed by the Insolvency and Bankruptcy Code? Actually में repeal नहीं हुए हैं, but इतना ध्यान में अब इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि कौन कितने एक्ट, 2 एक्ट रिपील हुए थे. तो इसमें वो पूछा हुआ आपसे
कि कौन कौन से एक्ट थे वो, है ना। तो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, द प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, बोथ ए एंड बी। रिकवरी ऑफ एक्ट जो है वो नहीं हुआ रिपील। तो ये दो एक्ट 1909 और 1920 पुराने एक्ट थे, ऐसे याद रख लेना है। तो ये हट गए थे हमारे पास से, पर ये वैसे इंडिविजुअल्स के लिए है। तो जब तक अभी तक भी आईबीसी के अंदर इंडिविजुअल्स को नहीं इन्होंने इंक्लूड करा है, इंक्लूड करने का प्रोविजन जरूर है, तो कभी भी किया जा सकता है। हाँ, तब तक ये वैसे एक्ट चल रहे हैं। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक, पर एग्जाम के लिए आपने याद रखना है कि दो एक्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट हट चुके हैं। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 कंसिस्ट ऑफ 255 सेक्शंस एंड 12 शेड्यूल्स। ये भी अमेंड हो चुके हैं, बट एग्जाम पर्पस के लिए आपने यही याद रखना है कि 255 सेक्शंस है और 12 शेड्यूल्स हैं। कुछ आईसीआई के आरबीओ का जैसे पीपीटी एंड ऑल पड़ी हुई हैं, उनमें 11 शेड्यूल्स लिखे हुए हैं, पर ये 12 हैं और 255 सेक्शंस हैं। A bench as defined in the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 means a bench of the adjudicating authority, a bench of the NCLT, a bench of DRT और bench of High Court। सर इसका A आंसर क्यों है, B और C और D क्यों नहीं है? B, C और D को मिलाकर ही ये वर्ड बनता है हमारे पास। जो हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना। जैसे हम बोल देते हैं हाई कोर्ट का बेंच ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट के फलाने बेंच ने डिसीजन दिया, तो बेसिकली जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसके बेंच की यहाँ पे बात होती है हमेशा। तो ये भी एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है इस लॉ के अंडर, ये भी एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है इसी लॉ के अंडर इंडिविजुअल्स के लिए। ये इसके बाहर के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उनके बेंचेस के लिए भी वर्ड ये बेंच यूज कर लिया जाता है, पर जनरली जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसके साथ में ये बेंच वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। देन इट सेज चार्ज means an interest or lien created on the property or assets of any person or its undertaking or both as the case may be or security and includes a mortgage। चार्ज का मतलब होता है जो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लीन अगर क्रिएट कर दिया गया है ना। देन कॉर्पोरेट पर्संस डिफाइन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 शैल नॉट इंक्लूड। कॉर्पोरेट पर्संस में कौन से नहीं आएंगे? कंपनी आ जाती है, एलएलपी आ जाती है, ये भी एलएलपी की तरह ही डिफाइन करा हुआ है। एक इन्होंने जो ये आंसर लिखा हुआ है, इसके बाद मैं ज्यादा फ्रैंकली बताऊं तो ज्यादा अग्रीएबल 100% नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा बना दिया हुआ है इसने। बट यू हैव टू रिमेंबर अ पर्सन इनकॉर्पोरेट विद लिमिटेड लाइबिलिटीज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, दो बार टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड इंक्लूड्स एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कोई भी है वो भी कॉर्पोरेट उसमें आ जाएगा। वैसे तो ठीक है, पर ये है कि हाँ, जो भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर इस लाइन की वजह से जो है वो ये आपकी जो है वो इज नॉट में फंस जाती है फिर, है ना, कि ये कोई कॉर्पोरेट पर्सन नहीं है, कि कोई भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जो है वो उसमें आ जाएगा। कंपनीज आएंगी, एलएलपीज और लिमिटेड लाइबिलिटी वाली जो सिचुएशन है इंडिया में वो एलएलपी के लिए चलती है, वो आ जाएंगे इसमें, है ना। Core service as defined in the IBC means services rendered by an information utility for। core services का मतलब है जो information utility, जैसे बैंक्स के लोन लेके अलग अलग बैंकों से लोग ले लेते हैं लोन, दूसरे बैंक को पता भी नहीं चलता था, है ना। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आईबीसी के अंदर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बनाई गई कि आप लोगों के एक सेंट्रलाइज्ड रहे सिस्टम, कि ताकि अगर मिस्टर ए 2 बैंकों से लोन पहले ले चुका, तीसरे के पास जाता है तो उसके पास प्रॉपरली इंफॉर्मेशन रहे, है ना। तो एक्सेप्टिंग इसका काम क्या क्या है, जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, accepting electronic submission of financial information in such manner as may be specified, safe and accurate recording of financial information, and authenticating and verifying the financial information submitted by a person। तो टेक्निकली ये सारे काम जो है वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी करती है। मीन्स अ लाइबिलिटी, ये फिर आगे दोबारा क्वेश्चन, मीन्स अ लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन ड्यू टू दैट इज क्रिएटेड आउट ऑफ अ क्लेम। तो क्लेम की वजह से जो लाइबिलिटी क्रिएट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं डेट। ठीक है, मीन्स नॉन पेमेंट ऑफ डेट। नॉन पेमेंट ऑफ डेट जब ड्यू होती है उस टाइम पे अगर कोई पेमेंट नहीं करता तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, डिफॉल्ट। मीन्स सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, डिपॉजिट्स, क्रेडिट अरेंजमेंट्स इंक्लूडिंग लोन्स एंड एडवांसेस बाई बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स अदर देन कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्सचेंज करेंसी। ये आपने याद रखना है, ये एक बार के मॉडल टेस्ट पेपर में भी है। ठीक है, कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट को फाइनेंशियल प्रोडक्ट हम नहीं बोलते हैं। जब वो एक फॉरेक्स का ट्रांजैक्शन है कि मैंने करेंसी खरीदनी है, मैंने करेंसी बेचनी है, उस ट्रांजैक्शन को हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट के नाम से नहीं बोलते हैं। बाकी जो भी डिपॉजिट्स हैं, क्रेडिट अरेंजमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, ये सारे के सारे को एक शब्द यूज करा जाता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। जो ये इसको आपस में मिला लेता है आपस में,
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स, ये सब क्या है, एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट एज डिफाइंड अंडर आईबीसी डज नॉट इंक्लूड, वहीं से क्वेश्चन एक और फ्रेम हो गया, फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर। फाइनेंशियल सर्विस एज डिफाइंड बाय आईबीसी डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग सर्विसेज, उसमें क्या क्या नहीं आता है फाइनेंशियल सर्विसेज में, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, ऊपर पड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस फाइनेंशियल सर्विसेज है, एस्टेब्लिशिंग और ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम एक फाइनेंशियल सर्विस है, विड्रॉन मनी फ्रॉम एटीएम, ये बैंक की एक नॉर्मल सी सर्विस है, दिस इज नॉट एज पर आईबीसी, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर डिफाइंड इन आईबीसी डज नॉट इंक्लूड, इसमें कौन कौन नहीं आता है, सेबी आ जाता है, आरबीआई आ जाता है, पेंशन फंड आ जाता है, आईआरडीए आ जाता है, नीति आयोग इज नॉट पार्ट ऑफ, ये पार्लियामेंट्री कमेटी के अंडर बना हुआ एक नीति आयोग है, ये इसका पार्ट फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर ये नहीं। 35 means a person engaged in the business of providing financial services in respect of authorization issued or registration granted by a financial sector regulator, जो financial sector regulator ऑर्गेनाइज कर रहा है, उस सेक्टर को मैनेज कर रहा है, उसके अंडर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर। इन्वेस्टमेंट बैंकर आईपी फाइनेंसर नहीं बोलते हैं। उसका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो बाई लॉज बनाती है डज नॉट इंक्लूड, आईसीआई वाली आ जाती है बीच में, आईसीआईसीआई वाली भी आ जाती है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी आ जाती है, सीएमए, सीएमए अब कोई शब्द ही नहीं रहा हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उसको हम लोग बोलते हैं। सिक्योरिटी इंटरेस्ट एज डिफाइंड इन आईबीसी डज नॉट इंक्लूड, सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो लीन वगैरह क्रिएट कर देते हैं, राइट टाइटल और इंटरेस्ट और क्लेम और टू प्रॉपर्टी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, mortgage charge hypothecation assignment is considered as security interest, encumbrance or on any other arrangement securing payment or performance of any obligation, a performance guarantee, this is again an MCQ, must be remembered, performance guarantee को हम लोग कभी भी security interest नहीं बोलते हैं, ठीक है। then includes an agreement or arrangement in writing for the transfer of assets or funds, goods or services from or to the corporate debtor, transaction, the correct answer is transaction, and includes sale, purchase, exchange, mortgage, pledge, gift, loan or any other form of right, title, possession or lien is called transfer. Transfer includes everything this, transaction includes agreement for transaction of any kind of properties between the corporate to or from the corporate debtor एज पर द आईबीसी, अदरवाइज तो ट्रांजैक्शन एक बहुत वाइड टर्म है जो हम लोग सब समझते हैं ना। इसके बाद मेरे पास आता है सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्संस। The first question is the insolvency and bankruptcy code is applicable to corporates. The default is 1 lakh or more. This limit has been increased to 1 crore on 20th of March, but you will not consider it for exams. The independence stage in the insolvency and bankruptcy code 2016 for corporate insolvency are resolution process and liquidation. ये याद रखना है कि दो चीजों के लिए है, लिक्विडेशन के लिए भी है ये एक्ट और इसको रिवाइव करा जा सके उसके लिए भी है। Then there comes two sections 524 and 524A, ये दोनों हम लोगों को क्या बताते हैं कहीं ना कहीं कि रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी हैं इनकी, या रिलेटिव्स कौन कौन से हैं, कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए 524, इंडिविजुअल्स के लिए 524A। द टर्म रिलेटेड पार्टी फॉर कॉर्पोरेट डेटर इज डिफाइंड 524 एंड फॉर इंडिविजुअल इट इज डिफाइंड अंडर 524A। रिलेटेड पार्टी इंडिविजुअल के केस में कौन कौन से हो सकते हैं, जो कंपनीज एक्ट में और इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारे रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल है, पर्सन ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द इंडिविजुअल इज अकस्टम टू एक्ट, ये एक नया वर्ड है कि अगर मेरे बोलने पे वो पर्सन कुछ एक्ट करता है तो मैं भी उसका रिलेटिव हूं, है ना, जीजा जी जैसे होते हैं हमारी उसमें, रिलेटिव टू द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो अगर स्पाउस के कोई इंडिविजुअल्स हैं तो उनके ऊपर भी हम लोग बात मान सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। A resolution plan means a plan proposed by any person to the insolvency resolution of the corporate debtor as a going concern, कि अब चलती रहेगी, ये मान के कभी भी नहीं हम लोगों ने मानना होता कि अब कंपनी को बंद कर देंगे और पैसे निकालेंगे, है ना, क्योंकि बंद कर देंगे फिर तो लिक्विडेशन कर लो, तो हम यही मान के हमेशा प्लान बनाए जाते हैं कि ये कंपनी लगातार लंबे टाइम तक चलेगी।
corporate applicant as defined in part 2 of the insolvency and bankruptcy code 2016 means corporate debtor. corporate debtor कौन है? जिस कंपनी में डिफॉल्ट हुआ है, जो कंपनी जो है वो किसी क्रेडिटर का डिफॉल्ट कर रही है ना, तो दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट एप्लीकेंट. उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट. means a corporate person who is in surety in a contract of guarantee to a corporate debtor. जिसने कॉर्पोरेट डेटर के किसी क्लेम के लिए, मेरी कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, मेरे किसी क्लेम के लिए किसी ने गारंटी दी हुई है, उसको शब्द यहां पे आईबीसी में यूज करा जाता है कॉर्पोरेट गारंटर. इंसॉल्वेंट कंपनी या पर्सनल गारंटर वर्ड नहीं यूज किया जाता. देन who is a corporate guarantor under the IBC? a person who owes debt to a company. नहीं. an entity whose money is money to a financial institution. नहीं. company that owes debt to any person. नहीं. a corporate person who owes a debt to corporate debtor. a corporate debtor who owes a debt to any person. जो कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट गारंटर नहीं, कॉर्पोरेट डेटर लिखा होता है यहाँ पे. कॉर्पोरेट डेटर कौन सा पर्सन होता है? जो किसी भी पर्सन को कुछ ना कुछ इसने डेट दिया हुआ है ना, मतलब किसी न किसी को इसने पेमेंट करनी है, वो करता है पैसा, ये है ना. देन हु कैन इनिशिएट द CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर द IBC? फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, खुद का खुद वो कॉर्पोरेट डेटर है ना. तीनों लोग जो है वो IBC के लिए जा सकते हैं. हु कांट इनिशिएट द CIRP? कौन इनिशिएट नहीं कर सकता? फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर तो जा सकते, तीन लोग ही. IRP, मान लो मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का मैंने एग्जाम क्लियर किया, मैंने कोई कंपनी ढूंढी लॉस में, मैं खुद चला गया IBBI के पास कि इसको मुझे चलाने दो, तो ऐसा नहीं होता है ना. वो जिनको पैसे, जिनको अपने पैसों का टेंशन है, वही बोलेंगे, तभी चलेगा काम आगे. द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स इन रिलेशन टू अ कॉर्पोरेट पर्सन मीन्स in the context of insolvency and this is corporate person, for a corporate person. कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, अब किसी कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम. तो ये लिखा हुआ आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम. एनुअल रिपोर्ट या मेमोरेंडम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होती. Then who can initiate the corporate insolvency resolution process against a corporate debtor who commits a default? फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर. ठीक है, तो ये तीनों, तो ये सर ये अलग अलग दिए हुए हैं, तो ये फिर तीन आंसर तो एक ऐसे करोगे नहीं आप, तो चौथे में तीनों दिए हुए हैं, तो बिल्कुल ठीक है ना. तो इसके साथ विल एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो. We'll meet you in the second video. Just go through these questions. If any doubt remains, then do ask me. बाकी के पार्ट्स के ऊपर भी हम लोग जल्दी से वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, एक बार आपने गो थ्रू कर लेने हैं. थैंक यू सो मच.